تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں پیر کو ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب کرائے پر چلائی جانے والی آرٹیسی بس ایک اسکول بس سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 طلبہ معمولی زخمی ہو گئے جبکہ دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ حادثے کے نتیجے میں آرٹیسی بس کا اگلا حصہ بری طرح متاثر ہوا جبکہ اسکول بس کو معمولی نقصان پہنچا۔ اس حادثے کے وقت اسکول بس میں 26 طلبہ سوار تھے جن میں سے صرف 2 طلبہ کو معمولی چوٹیں آئیں۔ زخمی طلبہ کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دیگر تمام بچے محفوظ رہے۔ واقعے کی طرح ملتے ہی طلبہ کے والدین گھبراہٹ میں جائے حادثے پر پہنچ گئے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس اچانک پیش آئے واقعے کے باعث کئی والدین اور طلبہ شدید خوف و ہراس کا شکار دکھائی دیے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ آرٹیسی بس کے بریک فیل ہونے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ بریک فیل ہونے کی اصل وجہ جاننے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ سنگریڈی ضلع پولیس نے مختلف سب ڈویژنز میں راؤڈی میلہ منعقد کر کے راؤڈی اور ہسٹری شیٹس ہولڈرز کی کاؤنسلنگ کی۔ ایڈیشنل ایس پی چیتنیہ ریڈی نے کہا کہ اچھا کردار اختیار کرنے والوں کی ہسٹری شیٹس قواعد کے مطابق بند کی جائیں گی۔ انہوں نے گانجے کی کاشت، اسمگلنگ اور فروخت میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع ہیلپ لائن نمبر 8712656777 پر دے سکتے ہیں۔ ظاہر آباد کونسلر بلدیہ محمد جہانگیر قریشی نے ایس سی ہاسٹل کے طلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ کونسلر بلدیہ محمد جہانگیر قریشی کانگریس پارٹی قائد نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے طلبہ زندگی کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ مسابقتی دور میں لڑکیوں کا تعلیمی معیار مثالی ہے اور ریاستی حکومت غریب طلبہ کو مفت تعلیم، بہتر تغذیہ بخش غذا، بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ کامریڈی کے ضلع کلکٹر آشیش سنگھ مان نے دوماگنڈا گرلز ہائی اسکول کے دورے کے دوران طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ماحولیات کے تحفظ، شجرکاری اور پرندوں کی حفاظت کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ انہوں نے پرندے اور ماحولیات کے موضوع پر سائنس پروجیکٹس منعقد کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ میں سائنسی سوچ اور ماحولیاتی شعور کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قادردہ ضلع کلکٹر نے اسکول کے باورچی خانے، بیت الخلاء اور لیبارٹری کا معائنہ کرتے ہوئے صفائی، معیاری غذا اور لیبارٹری کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ اسٹیٹ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم امپلائیز یونین کی جانب سے شروع کردہ جنا جاگرنا یاترا کو کریم نگر میں زبردست رد عمل ملا۔ ایس سی پی ایس یو کے ریاستی صدر پرجنا کے زیر قیادت شروع کردہ یہ یاترا کریم نگر پہنچی تھی۔ کریم نگر میں ٹی ایس سی پی ایس یو کے ضلعی صدر اور یونائٹڈ ٹیم کے ریاستی صدر محمد شیخ نثار احمد اور ٹی ایس سی پی ایس یو کے ریاستی جنرل سیکریٹری سری کانت نے یاترا کا استقبال کیا۔ کلیکٹریٹ کے احاطے مختلف محکمہ جات کے سی پی ایس ملازمین نے اس میں حصہ لیا۔ ریاستی صدر پرجنا اور یونائٹڈ ٹیم کے ریاستی صدر محمد شیخ نثار احمد نے 23 اگست کو حیدرآباد میں منعقد کیے جانے والے جلسے عام کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی۔ ایلاریڈی منڈل کے لنگم پیٹ کانگریس پارٹی کے سینئر قائد و ضلع پارٹی جنرل سیکریٹری محمد فتح الدین نے کہا ایس آئی آر سے متعلق میعاد ختم ہونے کو ہر ووٹر کو اپنا ایس آئی آر فارم وقت سے پہلے بی ایل او کو دے دینا چاہیے۔ اپنے ووٹ کی قدر کرتے ہر ووٹر کو 3 اگست تک اپنا فارم خانہ پوری کرتے ہوئے فہرست رائے دہندگان میں شامل ہونے کی صلاح دی۔ ایس آئی آر سے متعلق انہوں نے لاپرواہی نہ برتنے کی پرزور اپیل کی۔ ضلع کلیکٹر نرمل بھاویش مشرا آئی ایس نے نرمل منڈل کے موضوع کوٹلہ میں اندرما ہاؤس کے گھر میں داخلے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر مشرا نے کہا حکومت اس بات کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ہر مستحق کو اندرما ہاؤس اسکیم کے تحت مکان دیا جائے۔ آج ضلع کلیکٹر نے نرمل منڈل کوٹلہ کے موضوع کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گاؤں کی مستحق خاتون ایم ناگوا کے اندرما مکان کے گرہ پرویش پروگرام میں شرکت کی اور مستحق خاتون اور متعلقہ حکام کے ہمراہ ربن کاٹ کر گھر کا افتتاح کیا اور پورے مکان کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا حکومت کا مقصد تلنگانہ کو جھوپڑیوں سے پاک ریاست بنانا ہے۔ تمام مستحق خاندانوں کو اندرما مکانات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مضافات میں تعمیر شدہ ڈبل بیڈروم مکانات کا معائنہ کیا اور متعلقہ حکام سے ان کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ اس پروگرام میں ضلع کے ایڈیشنل کلیکٹر برائے مقامی ادارہ جات وینکٹیشورلو اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔
बोधन के बल्दी हल्के नंबर 13 के काउंसलर एल रवि के जेर निगरानी महफूज पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी के साथ जारी है। काउंसलर रास्त अपनी निगरानी में जदीद पानी के पाइपलाइनों की तरतीब के कामों का मुआयना किया और मुतल्लिका हुक्काम को मियारी अंदाज में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर काउंसलर के हमरा कांग्रेस पार्टी के कायदीन ए रमेश, प्रवीण, किशोर, कॉलोनी के मौजूदीन मौजूद थे, जिन्होंने पाइपलाइन के जारी कामों पर इजहार इत्मीनान किया। बोधन में मौजूद कारपेंटर यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसे मुत्तफिका तौर पर बहस सदर राज मोहम्मद और नायब सदर सैयद हुसैन, सेक्रेटरी पी सुरेश बाबू, खाजन एम राजू, जनरल सेक्रेटरी श्रावण के अलावा अराकीन कमेटी की हैसियत से अजीत और सलीम का बा-इत्तिफाक आरा इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर नौमुंतखब सदर राज मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा, यूनियन के तमाम अरकान मुत्तहिद होकर कारपेंटरों के हुकूक फलाह बहबूद के लिए काम करें। इजलास में शरीक तमाम अरकान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि बाहमी ताउन और आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ यूनियन को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। जिले के भी आसिफाबाद के त्रिपुर टाउन रायतु वेदिका बिल्डिंग में आज हुकूमत के अहकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरितायत से अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वेंकट, मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर गिरीश कुमार, तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन, एमपीटीओ के प्रसाद और मुकामी सरपंच वी नागमनी नानी के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरितायत ने 2 नौजवानों किसानों बी मोहन की खिदमत की सताइश करते हुए बेस्ट किसान के तौर पर शीर अता करके शॉलपोशी की और तहनीत भी पेश की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन खुद मुख्तार करीमनगर में उर्दू के डिजिटल ज़राए कंप्यूटर की मदद से तर्जुमे पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। सत्तावाहाना यूनिवर्सिटी के सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए तालीमी इस्तेहकाम प्रोग्राम 100 रोज़ा मुहिम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन खुद मुख्तार करीमनगर के शोबा उर्दू ने सत्तावाहाना यूनिवर्सिटी करीमनगर के शोबा उर्दू के इश्तिराक से 23 और 24 जुलाई को उर्दू के डिजिटल ज़राए कंप्यूटर की मदद से तर्जुमा, उर्दू खत्ताती और जदीद उर्दू इमला के उन्वान से 2 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस वर्कशॉप का मकसद तालिबात और असातिज़ा को उर्दू ज़बान की जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की मदद से तर्जुमा, उर्दू खत्ताती और जदीद उर्दू इमला और तलफ़्फ़ुज़ से रोशनास करवाना था। इफ्तिताई इजलास की सदारत डॉक्टर अफसरी उस्मानी, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन करीमनगर ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर डी सुरेश कुमार सत्तावाहाना यूनिवर्सिटी मौजूद थे। प्रोग्राम की निगरानी प्रोफेसर अबरार बाकी, सदर शोबा उर्दू सत्तावाहाना यूनिवर्सिटी और डॉक्टर मसूद सुल्ताना, सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन खुद मुख्तार करीमनगर ने अंजाम दी। वर्कशॉप के पहले रोज मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मुमताज माहिर तालीम प्रोफेसर एम अब्दुल समद सिद्दीकी ने उर्दू के डिजिटल ज़राए के मौजू पर जामे नशिस्तें मुनक्किद की, जिनमें उर्दू ज़बान की तदरीस और तालीम के लिए जदीद डिजिटल वसाइल और सॉफ्टवेयर का आलमी इल्मी तारुफ करवाया गया। एलआरडी मंडल के 44 बूथ पर SIR का काम 100% मुकम्मल होने पर रुकन असेंबली मदन मोहन ने मुबारकबादी दी और इसके लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले BLA अफराद की सताइश करके मवाजाती कमेटियों, कांग्रेस पार्टी कायदीन और अरकान की SIR के कामों में बेलौस खिदमत की तारीफ की। इस तरह पार्टी के लिए मुस्तकबिल में भी मुस्तहकम करने का काम इस तरह दिलचस्पी के साथ करने की सलाह दी। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर हल्का असेंबली के तहत कोडेरू मंडल में VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन दे स्कीम के तहत जारी फार्म पॉन्ड की तामीराती कामों का जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने आज मुआयना किया। कलेक्टर ने कोडेर गांव के किसान रविंदर की 30 कुंटा ज़राई जमीन पर तामीर किए जा रहे फार्म पॉन्ड का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने तामीराती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान हासिल करते हुए दरियाफ्त किया कि काम की समरल में उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि काम में मजीद तेजी लाई जाए, म्यार को बरकरार रखा जाए। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर हल्का असेंबली के तहत कोडूरू मंडल के पसपुला गांव में जारी खुसूसी SIR वोटर फहरिस्त नजरसानी प्रोग्राम के तहत होने वाले डिजिटलाइजेशन अमल का जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने गांव के डिजिटलाइजेशन मराकज का दौरा करते हुए BLOs की जानिब से जारी कामों का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने वोटरों की तफसीलात के इंदराज, मैपिंग, जेर इल्तिवा दरखास्तों, नकल मकानी कर जाने वाले वोटर्स, फौज शुदा वोटर्स के इंदराज से मुताल्लिक मालूमात हासिल करते पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने हिदायत दी कि इलेक्शन कमीशन की रहनुमा हिदायत के मुताबिक हर वोटर मालूमात की मुकम्मल तस्दीक करके डिजिटलाइजेशन का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा
वोटर फहरिस्त को शफाफ गलतियों से पाक बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। किसी भी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कामारेड्डी के एडिशनल कलेक्टर रवि तेजा, तहसीलदार हेमा बिंदु और मुकामी कौंसलर गिरी गिनती सपना और लक्ष्मी नारायण ने 46 और 47 वार्ड में SIR वोटर इंदराज मुहिम का जायजा लिया। एडिशनल कलेक्टर ने वोटरों से 1 अगस्त तक अपने SIR फॉर्म जमा करवा देने की अपील की, जबकि BLOs को मौसूल फॉर्म फौरी तौर पर ऑनलाइन अपलोड करने की हिदायत दी। मुआयने में रेवेन्यू अफसरान, BLOs और दूसरे मुतल्लिका एहलकार मौजूद थे। जमीयत उलमा जिले निजामाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, 1 अगस्त बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब निजाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर अजला के मुसलमानों के मौजूदा मसाइल के उन्वान से अजीम शान तरबियत इज्तिमा इजलास आम मुनक्किद हो रहा है। इजलास की सदारत मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन करेंगे, जबकि अमीर शरीयत तेलंगाना मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान की सरपरस्ती हासिल रहेगी। इस मौके पर रियासत की मुमताज दीनी शख्सियात मुखातिब होंगी। इससे पहले सुबह 9 बजे से इदारे मजहर उलूम ट्रस्ट निजामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर के उलमा, आइमा, जिम्मेदारान और कारकुनान के लिए तरबियती इज्तिमा भी मुनक्किद होगा। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने तमाम उलमा, आइमा, नौजवानों और वाबस्तगान जमीयत से भरपूर शिरकत की अपील की है। रियासती तेलंगाना की सतह पर हैदराबाद नारायणगुड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल में अवार्ड फंक्शन मुनक्किद किया गया था, जिसमें जिले कामारेड्डी मंडल पिटलम के प्रभु लैब सर्विसेज वेंकटा रमनागौड़ को धनवंतरी अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर रमनागौड़ ने कहा, देही इलाकों में भी जदीद तरीन तिब्बी आलात का इस्तेमाल करते हुए तिब्बी टेस्ट की खिदमत अंजाम दी जा रही है। अवार्ड हासिल करने पर हमारे गाँव को रियासती सतह पर एक पहचान मिली है। बेहतरीन तिब्बी खिदमत का अवार्ड मिलने पर रमनागौड़ को मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादी भी पेश की जा रही है। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर और सिरपुटोन के दरमियान रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा हो जाने नाकारा सड़क की वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मरतबा नाकारा सड़क की वजह से ऑटो पानी के गड्ढे में भी फंस गए थे। इसकी वजह से आमदरफ्त की ट्रैफिक को काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसलिए जिले कलेक्टर के अलावा RNB अहदेदारों को इस नाकारा सड़क की तरफ मुतवज्जो होने की सख्त जरूरत है। नाकारा सड़क की दुरुस्ती करते अवाम और राहगीरों को सहूलत फराहम करने का मुकामी अवाम ने मुतालबा किया। LAD महकमे ज़राअत AEO सैयद अब्दुल मुकीत को उनकी बेहतरीन खिदमात पर दुमकुंडा में आज जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने रईतु नेस्त्रम प्रोग्राम के 100वें किस्म मुकम्मल होने पर अवार्ड से नवाजा और शोबे ज़राअत के लिए उनकी खिदमात की सताइश की मुबारकबादी दी। इस मौके पर महकमे ज़राअत के जिले मुख्तलिफ अहदेदार मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटोन MPDO ऑफिस के रूबरू आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वेंकट, MPDO के प्रसाद, तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन, मंडल एग्रीकल्चर ऑफिस गिरीश कुमार, APO चंद्रैया, सरपंच V नागमई नानी के अलावा मुकामी अराकीन ग्राम पंचायत के साथ मिलकर MPDO ऑफिस के रूबरू पौधा लगाकर शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने अपने अपने घरों के रूबरू कम से कम 2 पौधे लगाने का मशवरा दिया। रियासती वज़ीर ज़राअत और मार्केटिंग T नागेश्वरराव ने कहा, हुकूमत का बुनियादी मकसद ज़राई शोबे को मजीद आसान, जदीद और किसानों के लिए मुनाफे बख्श बनाना है। आज हैदराबाद से मुनक्किद होने वाले रायतु सनितम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्होंने रियासत भर के किसानों से खिताब किया। इस प्रोग्राम में तमाम अजला के मंडल मराकज़ में कायम रायतु वेदिका के जरिए अफसरान और किसानों ने ऑनलाइन शिरकत की और वज़ीर मौसूफ ने अपने खिताब में कहा कि बदलते मौसमी हालात के तनाजुर में किसानों को अपनी फसलों की काश्त के तरीकों में तब्दीली लानी चाहिए। पाम ऑयल की काश्त को फरोग देना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रायतु नेस्तम प्रोग्राम के जरिए आलमी मियार की ज़राई टेक्नोलॉजी और साइंसी रहनुमाई किसानों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने किसानों से इस मौके से भरपूर फायदा उठाने की अपील की। जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा IAS ने सोन मंडल के रायतु वेदिका से इस प्रोग्राम में शिरकत की और कहा, किसान रायतु प्रोग्रामों से भरपूर इस्तिफादा करें। इस प्रोग्राम में जिलाई ज़राई ऑफिसर और बागवानी अफसरान भी मौजूद थे। बाद बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले किसानों और ज़राई अफसरान को तहनीत पेश की गई। उन्हें यादगारी तोहफे से भी नवाजा गया।
जिले के बियासीबाद के सिपुटोन मंडल को दौरे पर पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरितायत से मुकामी मेजर ग्राम पंचायत सरपंच वीक मिनाक नानी ने अपने हमरा अराकीर ग्राम पंचायत असलम बिन अब्दुल्ला, मुकरम हुसैन, मोइज अली, अमीनुद्दीन वी नानी के अलावा मुकामी ग्राम पंचायत अराकीन के साथ मिलकर सरपंच वी नागमनी नानी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरितायत से मुलाकात करके कौमी ग्राम पंचायत में बिल कलेक्टर, जूनियर असिस्टेंट के अलावा तमाम खाली जायदादों को तखरात करने की तहरीर तौर पर नुमाइंदगी अंजाम दी। लेडी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का आज जिले इंटर नोडल ऑफिसर शेख सलाम ने दौरा करते अम्मा आदर्शा स्कूल के तामीराती कामों का मुआयना किया और तलबा से भी बात करते ज़ौक़ शौक़ से तालीम हासिल करने, अपने वालिदैन कॉलेज का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। इस मौके पर लेक्चरर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कविता ने सिलसिला के नरेला वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक करार दिया और कहा एक ऐसा सानेहा है जिस पर शख्स को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। उन्होंने मुतासिर खानदानों से मुलाकात करते हुए खासतौर पर आंजिहानी जी गोपाल के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कविता ने कहा जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त भी वो इस हुकूमत का हिस्सा थी, इसलिए शर्मिंदगी के साथ मुतासिर से मौज़ियत ख्वाह हैं। उन्होंने कहा चंद अफराद की लालच की वजह से बेगुनाह लोगों की जाने गई जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेत की गैर कानूनी मुंतकिली के खिलाफ एहतजाज करने वाले आवाम पर पुलिस ने बेरहमाना तशद्दुद किया, कई दिनों तक अपराध को हिरासत में रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि इस जुल्म में मुलविस पुलिस अफसरों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेहनत लगन के जरिए फसलों की पैदावार करने किसानों को मशवरा। सिरपुटौन में किसानों के इजलास से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता का खिताब। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन के रैतु वेदिका बिल्डिंग में आज डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वेंकट और मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर गिरीश कुमार की जेर निगरानी में फसलों की पैदावार से मुताल्लिक किसानों में शोबेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कलेक्टर के हरिता ने शिरकत की। गढ़वाल जिले कलेक्टर इजवान बादशाह शेख ने गढ़वाल मंडल के चिरुगोनीपल्ली गांव में आंगनवाड़ी मरकज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने सेंटर में बच्चों को फराहम की जाने वाली ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा, तालीमी तदरीस वगैरह की तफसीलात का जायजा लिया और अहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए बच्चों के मुस्तक़बिल की बुनियाद रखी जाती है। उन्होंने हुक्म दिया कि बच्चे बाकायदगी से आंगनवाड़ी मराकज़ में हाजिर हों और आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और मियारी तालीम फराहम की जाए और सेम मिम एस्टिटिंग के मसाइल से मुतासिर बच्चों की पहले से निशानदेही करने का मशवरा दिया। निजामाबाद में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी ने शहर के बुनियादी मसाइल के हल के मुतालबे पर म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने एहतजाज किया। सिटी सेक्रेटरी नीलम साईबाबा ने कहा सड़कों, ड्रेनेज, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट, विनायक नगर बाईपास रोड और अंडर ग्राउंड ड्रेनेज जैसे मसाइल को फौरी हल किया जाए। बाद मुजाहिरीन म्यूनिसिपल कमिश्नर को याददाश्त पेश करते हुए शहरी सहूलियात की बेहतरी मसाइल के खात्मे का मुतालबा किया। जिले मंचियाल के चिन्नूर में वाक़े के CR पार्क को फौरन खोलने का मुतालबा करते हुए पार्टी कायदीन ने एहतजाज किया। साबिक कौंसलर महेश ने खिताब करते हुए कहा चिन्नूर टाउन में वाक़े के CR पार्क तकरीबन 3 माह से बंद है। खुशी खुशी शाम के वक्त में पार्क में खेलने के लिए बच्चे, वॉकिंग करने के लिए नौजवान और बुजुर्ग आते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस पार्क को बंद कर दिया गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं। निजामाबाद के 43वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर रम गंगाधर की क़यादत में मुनक़्क़िदा SIR बेदारी प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश शेट्टी ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा जमहूरी निज़ाम में वोट की बड़ी अहमियत है। हर अहल शहरी खुसूसी जामे नज़रसानी यानी कि SIR में शिरकत करे। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने जिले कलेक्टर को तहरीर याददाश्त पेश करते हुए कंटेश्वर दरगाह मस्जिद की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि हालिया बारिश के बाद मस्जिद की छत से पानी रिस रहा है, नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने वक्फ बोर्ड और मुताल्लिक़ा महकमों से फौरी मुआयना और मरम्मत का मुतालबा किया।